We have come this place is called Radha Vinod. English. English. 90 волна. 90. А я нет. So by the Kajali's mercy of Guru and Gauranga, now we have come this temple. This temple is called Radha Vinodi Jala. Manifested by Loknath Das Goswami, especially in Lord Chaitanya Mahaprabhu, when he performed his Leela Grahasthila household Leela in Navadvip Dham. That time, Loknath and Bhubarbha Goswami, they also prayed to Lord Chaitanya Mahaprabhu. They want to perform bhajan and sadhana. That time Lord Chaitanya Mahaprabhu sent to them in Vrindavan. That means in all our Goswamis, the prominent two Goswamis, especially Loknath and Bhubarbha Goswami, first day came in Vrindavan. And they performed bhajan and sadhana. Lord Chaitanya Mahaprabhu told, hey, you are going to Vrindavan, so you may also reserve one bhajan place for me. This is the humility of Lord Chaitanya Mahaprabhu. So Loknath Das Goswami, he absorbed to perform bhajan and sadhana in Vrindavan. And he was traveling different forests of Vrindavan, sometimes and Khadirvan, and different Chhatravan, different places. He also performed bhajan and sadhana. And his prominent disciples also know about Narottam Das Goswami. But very sweet pastime about Loknath Das Goswami's Thakurji and Radha Vinod Lal. Loknath Das Goswami, when he performed bhajan and sadhana in Khadirvan, maybe after a couple of days we will go also Khadirvan. And third Loknath Das Goswami performed bhajan and sadhana in this place. Loknath Das Goswami, yes, so much love and affection with his deities, Vigraha. He also kept Thakurji on his, what is called, neck as like a, what is called, necklace. Loknath Das Goswami, he always absorbed in bhajan sadhana and shedding tears, chanting holy names, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So one night, Loknath Das Goswami, he worshipped Thakurji and he offered some prasad, everything to Thakurji. And midnight, that was that time was the summer time. And very hot time. Loknath Das Goswami, when he was taking rest, and our Goswamis, they never sleep. Actually, they just chanting holy names, just a little bit their eyelids coming down, that is called their sleep. Our Acharya explained in this way, Chappanna Danda Ratri Dine, Radha Govinda Vina Nahi Jaya. Charidanda Sute Thake, Sapane Radha Govinda Dekhe. Day and night, that is called the 60 dandas. One danda means 24 minutes. So 60 dandas, that is called day and night, they perform bhajan and sadhana. But 56 dandas, they also always absorb with chanting holy names and remembering pastimes of Krishna. That is called Ashtakalin Leela Smaranam. Only 4 dandas, and that means 96 minutes, 1 hour 36 minutes, they used to take bath and taking some madhukuri, something this. In this 1 hour 36 minutes, sometimes just taking rest. And
And that time in their dream had come their Ishtadev Radha and Krishna. Sankha Prabhupada Gananati Kala Avasanam Pito Nidra Ari Vihara Kadi Vichito Chantu Dinuchacha Radha Krishna Puna Smriti Modhirma Anandina Sammohito Bandi Rupa Sanatano Rupujugo Sriji Gopal. Sat Goswami has to come. Srivasacharya glorified. How did they perform bhajan sadhana in Vrindavan? So one in summertime, night time, Loknath Das Goswami, he was taking rest. In the dream, then Vinodi Lal Thakurji came. And Thakurji just also touching his, what is called, the end of his ear. And they said, Thakur, Loknath. Then Loknath Goswami just opening his eye, his Thakurji there. Very nice, beautiful Thakurji, very smiling face. And Thakurji told, Loknath told Thakurji, what do you want? Thakurji told Loknath, do you know? Today I went to Ras dance and I performed Ras dance with the gopis. And gopis, they are very tricky. And they stole my fruits and they also played my flute and told, okay, always you played flute and made dance to me. So I will take revenge. Because Krishna when played the flute, then all they also are intoxicated chanting the sweet names also. So our Bujavasi singing, Radha nache, Krishna nache, nache gopikan, man mera ban gaye sati, pavan vrindavan. Radha nache, Krishna nache, nache gopikan, man mera ban gaye sati, pavan vrindavan. Lalita nache, Vidaka nache, nache sakikan. Lalita nache, Vidaka nache, nache sakikan. Man mera ban gaye sati, pavan vrindavan. Man mera ban gaye sati, pavan vrindavan. Radha nache, Krishna nache, nache gopikan. Man mera ban gaye sati, pavan vrindavan. Radha nache, Krishna nache, man mera ban gaye sati, pavan vrindavan. Nache, Jamuna nache, nache nadigan. Nache, Jamuna nache, nache nadigan. Man mera ban gaye sati, pavan vrindavan. Man mera ban gaye sati, pavan vrindavan. So Krishna told gopis, they played the flute and all were dancing. When I used to play the flute, sometimes I stopped. But Gopi, especially Srimati Radhika, tonight she played my flute, she did not stop. Consider. So for what happened, I was dancing, all gopis were dancing. Do you understand? So my face, so much pain come. My muscle completely was swollen. I can't sleep. So what will do? So please, please massage my feet. Then Loknath Das Goswami massage the feet of Thakurji. Very nice, gentle, very soft. Then after 10 minutes, Thakurji completely sound asleep. Thakurji also snoring. Then Loknath Das said, okay, now I will take rest. So Loknath Das Goswami, he was taking rest. Then after 10 minutes again Thakurji came and again would touch end of the earth. Loknath, what happened? Oh, today is very hot. So I can't sleep. Then Loknath, okay. Then Loknath Goswami and fanning with the leaves. Then Thakurji, very nice, cold air, Thakurji sleeping. Loknath Goswami noticed now Thakurji completely sound sleeping, closed eyes. Then Loknath Goswami, now I am taking rest. Loknath Goswami taking rest. Again Thakurji also came after 10 minutes. Loknath. What happened? Listen, I am very hungry. Now you are hungry or not? Yes. So in the same way Thakurji told, Radha Vinodi told, I am very hungry. You also prepared some prasad for me. Well, what prasad do you want?
Lognat, listen. You prepare very nice. What is it called? पूरी Puri. Very nice. And also prepare very nice sabji for me with potato and tomato. And put them something. Oh, they also prepare very nice sabji. Lognat also say midnight, maybe 2 a.m. Prepare very nice and offer to Thakur ji to prasad. After taking prasad, Thakur ji told Lognat, listen, today don't do Mangala Aarti 4 o'clock. You do Mangala Aarti about 10 o'clock. Because at today too late, I have to sleep. Then Thakur ji, okay. So now you can go Vrindavan, many temples. The pujari also took this, maybe 8 o'clock, 9 o'clock. Baro में राधा लाल की जय। गुरु वैष्णव के अनुगत्य में हम लोग जिस मंदिर में हम लोग आए हैं, बहुत अतीब सुंदर मंदिर है। औरंगजेब उस हिंदुओं के मंदिर तोड़ने के लिए प्रयास किया, इसलिए जयपुर के राजा मान सिंह उन्होंने वृंदावन की 6 विग्रह के लेकर के चल पड़े। और विशेष करके गोविंद देव, राधा मदन मोहन, राधा गोपीनाथ और कौन सा राधा दामोदर और एक राधा और वृंदा देवी। जब वो काम्बोवन में आ गई, वृंदा देवी बोली मैं नहीं जाऊंगी वृंदावन छोड़ कर। वहीं पर इसलिए वृंदा देवी आज तक भी काम्बोवन में है। हम लोग जाएंगे वहीं पर वृंदा देवी का दर्शन करेंगे। बाकी 5 ठाकुर जो अभी ठाकुर जी जो है ये 5 विग्रह जो यहाँ पर आ गए, यहाँ पर 4 विग्रह विद्यमान है। और राधा मदन मोहन जो है वो करौली चली गई। अभी पुजारी ने बताया जिस कथा जो है राजकुमारी अपने विवाह के समय वो हट करने लगी। भाई हट होती ना, बाल हट होती है, एक राज हट होती है, एक बाल हट होती है और एक क्या होती है, स्त्री हट होती है। भाई बहुत खतरनाक होता है। तो राजा के राजकुमारी बोली मुझे शादी मैं करना नहीं है, जाना नहीं है, शादी कर हम ठाकुर जी के छोड़ कर कहीं नहीं जाऊंगा। तो बोले ठीक है ठाकुर जी के लेकर के जाऊंगा। बहुत जॉब ऐसे हट करने लगी, संक्षेप में बता रहा हूँ। तब कहने लगे ठीक है तुम्हारे आंख में काले पट्टी बांध देंगे और इसमें 6 विग्रह रख देंगे। यदि तुम्हें ठाकुर जी के चुन लो, राधा दामोदर के चुन लो, क्या बोले मदन मोहन के चुन लो तो तुम्हारे साथ जाएंगे। राजकुमारी तो रोना शुरू कर दिया। सारा रात ठाकुर जी के चरण पकड़ में रोने लगी। बोले तुम्हारे विरोध में कैसे रह सकते भाई, आंख बंद करके कौन सा विग्रह कहाँ से आ जाए। तो ठाकुर जी कहने लगे तुम चिंता मत करो, तुम जो हाथ लगाओगे ना देखो सब विग्रह में थोड़ा थोड़ा ना ये आएगा, ठंडापन आएगा, किंतु मेरे विग्रह में ना गर्म आएगा। भाई देखो हमारे शरीर में थोड़ा ताप होता है ना, पत्थर के कहीं भी रख दो ठंडा होता है, किंतु भाई जो मनुष्य होता है जीवन होता है उसके देख गर्म होगा। ठाकुर जी ऐसे भी लीला करने लगे। बोले देख चिंता मत करना, मेरे शरीर पर मेरा हाथ लग दोगे ना तुम्हें पता लगेगा इसमें गर्म है। जो गर्म है थोड़ा हल्का गर्म है ना वो सोचना ये मैं नहीं। तो राजकुमारी के आंख में विवाह के समय आंख में काले पट्टी बांध दिया और सारे विग्रह उनको रख दिया। तो राजकुमारी के ठाकुर को बोल ही दिया तो ठाकुर राजकुमारी ने के सारे हाथ ऐसे ऐसे करके देखा, जिस विग्रह जो थोड़ा सा हाथ का गर्म है ना उसको उठा करके बोले यही आई बोलो वृंदावन। इसलिए राजकुमारी के विवाह जो है उधारी हुई और राजा बाध्य होकर के बोलो राधा की जय। हम लोग जाने की इच्छा भी करते हैं कि अभी जाए ना वहाँ पर जा करके फिर रुक करके रात 2 बजे कौन जाना चाहते हैं रोज बहुत दूर है ना। हम एक बार गए थे यहाँ पर दर्शन करके गए थे रात 2 बजे मुझे 400 किलोमीटर फिर आगे 200 किलोमीटर आगे अंदर फिर 200 मीटर बाहर जाना पड़ेगा। और कोई कम से कम 3-4 किलोमीटर पैदल चलने पड़ेगा, बस नहीं जा सकते वो गाँव के ऐसे अंदर। हम लोग गए थे एक बार दर्शन करके आया, मैं तो 2 बार गया था तो बस नहीं करके हम लोग गए थे। परेशानी जाना चाहते बहुत अच्छा जाना चाहते हैं
तो ठाकुर जी क्या बोल रहा था? एक बार ही तो जाना है अरुण हुए ठाकुर जी चले 3 गए घंटे और हमारी राधा बंदी जो है यहाँ पर पधारे। मैंने कहा था लोकनाथ दास गोस्वामी के बारे में श्रवण कराया। ले लोकनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु के पहले ही और जानी महाप्रभु के आदेश से नवद्वीप से वृंदावन में पधारे लोकनाथ दास गोस्वामी। ये लोग भजन परायण थे, भजनानंदी थे। एक भजनानंदी होता है, एक गोष्ठानंदी होता है। हम लोग के भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद ने एक गोष्ठानंदी के एक भजन प्रणाली उन्होंने आविष्कार किया। किंतु पहले जितने हमारे गोस्वामी लोग थे ये भी लोग सब भजनानंदी थे। भजनानंदी होता है अकेला अकेला भजन करते थे, बस भजन में मस्त रहते थे। कोई आ जाते थे हरि कथा बोलते थे, कोई शाम के समय गोस्वामी लोग एक साथ बैठ जाते हरि कथा बोलते थे और अलग अलग होकर के बस भजन करते थे। बात ज़्यादा उन लोग केवल भजन में ही अपने आप मस्त रहते थे। तो लोकनाथ दास गोस्वामी यही राधा कृष्ण के छत्रवन है ना, वहीं पर छाता जिसको कहा जाता है, वहीं पर किशोरी कुंड भी है। उसे किशोरी कुंड में वहीं पर भी भजन करते थे और भजन करते हुए ठाकुर जी स्वयं उनके स्नान किया तो वहीं पर किशोरी कुंड से उनकी भी प्राप्ति है। उसको लेकर के वहीं पर भजन आदि किया। विशेष के उन्होंने छत्रवन से आगे और कहाँ पर खदीर वन में आकर के भजन करने लगे, जहाँ पर हमारे भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद ने एक सुंदर भी मंदिर भी प्रतिष्ठा किया था, छोटा सा खैरो गाँव जो है वह खदीर वन खैरो कहते हैं। उस मंदिर को जो है हमारे वो थोड़ा बहुत वो बनरी लाल भी उस मंदिर के थोड़ा भी रिनोवेशन भी किया। मैं भी थोड़ा भी योगदान दिया है उसमें, मेरा भी सब लोग ने नाम लिख दिया है। आप देखना मेरा भी नाम लिखा है उसमें। जो पुजारी करने लगे थोड़ा बहुत सेवा करो, ठीक है, ब्रज की सेवा तो अच्छा ही है। तो वहीं पर खदीरवन में रह करके हमारी ठाकुर जी की सेवा आदि करते थे। और मैंने कहा ठाकुर जी की सेवा गोस्वामी कैसे करते थे? 56 दंड रात्रि दिन राधा गोविंद बिना नहीं जाने, 4 दंड सोते था कि सपने राधा गोविंद देखे। 56 दंड जो है यानी ये लोग भजन करते थे। केवल 4 दंड यानी 1 घंटा 36 मिनट जो है केवल भजन करते थे। उस भजन में भी क्या करते, कभी माधुपुरी करने के लिए जाते थे, स्नान आने और उसमें भी थोड़ा बहुत विश्राम कर लेते थे। और उसमें जब कुछ भी झुक्की आ जाते थे उसमें भी उनके सपनों में जो है राधा गोविंद आ जाते थे। लोकनाथ दास गोस्वामी इसी प्रकार एक दिन भजन कर रहे थे। जेठ महीने था, बहुत गर्मी के समय था, रात्रिकालीन भी था। ठाकुर जी की सेवा करके लोकनाथ दास गोस्वामी 12 बजे थोड़ा बहुत लेट गए नाम करते करते। इतने समय ठाकुर जी आकर लोकनाथ गोस्वामी के कान के नीचे ऐसे ऐसे हाथ देकर के, जैसे छोटा बालक जैसे सुंदर सुकोमल हाथ होता है ना, उसी प्रकार लोकनाथ दास के यहाँ पर कान के नीचे ऐसे ऐसे करने लगे। लोकनाथ दास आँख खुले, देखा उनके ठाकुर जी मुंड मुस्कान करते हुए खड़े हो गए। इतने सुंदर स्वरूप देख करके लोकनाथ दास गोस्वामी की आंखों से आंसू हो गए। और लोकनाथ गोस्वामी ठाकुर जी क्या बात है, आज क्या बात है, क्या चाहते हो? ठाकुर जी कहने लगे लोकनाथ सुन, आज रात को मैं रास करने के लिए चले गए, किंतु वो रास में ये खटपटी ये जो ब्रज के छरिया है ना, ये राधा जी जो मेरे गोपियाँ जो है मेरा बंसी के जो है छीन लिया। चुरा तो बहुत दूर की बात है, बड़ी जबरदस्ती छीन लिया है। कभी कभी होता है ना भाई, हम अकेला है अनेक लोग जो छीन लिया तो क्या करते हैं। एक बार की कथा है, एक बार गोपियाँ भी विचार करने लगे ये कृष्ण के बंसी जो है हम लोग बहुत सताते रहते हैं। भोर भये कभी भोर के समय बंसी बजाते हैं और कभी रात में कभी दिन में, इनकी कोई शर्म नहीं है, बेशरम है। और जब भी बंसी बजा देते हैं तो हम लोग घर में कैसे रहें? इसलिए कहते हैं ये काम करें, ये इनको बंसी का हम लोग छीन लेंगे। सारी गोपियाँ ने जो है एक बैठक किया, उस बैठक में सिद्धांत ले लिया कि किसी प्रकार के कृष्णा के ऐसे छल बल से बुला करके और उनके हाथ से बंसी छीन लेंगे। बस हिंदी में ट्रांसलेट कर
Because same story. हाँ? They are saying same story, no need to translate. ना थोड़ा होना दूसरे हाँ तो छीन लिया, छीन लेंगे बस ऐसे करके कर दिया। तब कृष्ण के पास किसी प्रकार से आ गया। कृष्ण सखाओं के पास बैठ कर कहने लगे, सखा लोग मधुमंगल सुबल श्रीराम की कहने लगे, गोपियाँ तो ऐसे है मेरा वंश को छीन लेंगे क्या। मधुमंगल उठा कर हाथ उठा कर कहने लगे, कन्हैया मैं ब्राह्मण बालक हूँ, मैं रहते तेरा वंशी कोई छीन ले सकते हैं। छीन भी ले तो चिंता मत कर, मैं ब्राह्मण बालक हूँ, मैं मंत्र सिद्ध हूँ। मैं सारे मंत्र मैं पढ़ करके रखा हूँ, तंत्र मंत्र सनमोहिनी विद्या जितने पास हमारे सारे मंत्र है। कृष्ण बोले अच्छा तू मंत्र सनमोहिनी विद्या तेरे पास क्या है। बोले अरे साले तू जानते नहीं है ये सनमणि मंत्र जैसे है वो तुम्हारा वंशी कहीं भी रहे हमारे पास अपने हाथ अपने मेरे हाथ में अपने आप चला जाए। मैं ऐसे कर दूं तो हाथ में हमारे वंशी आ जाएगा। बोले अच्छा, बोले कैसे, बोले ऐसे, बोले दे साले तुर वंशी दे मैं दिखाता हूँ। बोले ले, कृष्ण दे दिया। बोले बोला ना मैं मेरा ब्राह्मण बालक हूँ, मैं सनमणि मंत्र जानता हूँ। बोले कैसे बोल रही साथ हाथ में वंशी दे दे कि नहीं दिया। वंशी तो किसी से देते नहीं हो, मैं जैसे बोल दिया तो हाथ में दे दिया। तो सनमणि मंत्र है कि नहीं बता। अच्छा कन्हैया बोले तो क्या कर। मधुमंगल बोले सारी चिंता मत कर, तेरे वंशी आज मुझे दे दे। गोपियां बुलाया, कृष्ण के निमंत्रण दिया, कृष्ण गए। देखा तो गोपियां देखा तो आज तो कृष्ण के पास वंशी है ही नहीं। तो क्या करे, इधर बात करते करते हंसी मजाक करते करते कृष्ण को छोड़ दिया। गोपियां विचार करने लगी ये वंशी कहाँ पर है। अपने सुखियों के द्वारा द्वितीयों के द्वारा पता चला आज कृष्ण के वंशी जो है मधुमंगल पास है। गोपियां विचार करने लगी मधुमंगल के पास जो वंशी है इस वंशी को कैसे हम लोग ले लेंगे, छीनेंगे कैसे। तब गोपियां दूसरे में कुछ गोपियां बहुत मुखरा भी होती है तो खराब भी होती है, जैसे ललिता आदि जो है करके कोई बात नहीं। मधुमंगल तो पेटुक है, पेटुक समझते हो ना, खाने वाले होता है उसके लड्डू दिखा करके बस लेकर के आएंगे और फिर उससे ही छीन लेंगे। तो मधुमंगल के भी लड्डू दिखाया, गोपियां कहने लगे मधुमंगल पे आगे। मधुमंगल समझ गए आज तो गोपियां मेरे कन्हैया को वंशी को छीन लेंगे। इसलिए मधुमंगल ने किया कि इतने रखा बिल्कुल जो है आप क्या बोलते हैं कमर के यहाँ पर जो है वेस्ट बेल्ट यहाँ पर होता है ना, बिल्कुल ऐसे करके रख दिया और ऐसे करके रखा। गोपियां विचार करने लगी ये मधुमंगल से कैसे लिया जाए, भाई ये ब्राह्मण बालक है कहीं अभिशाप ना दे दे। किंतु ऐसे है भाई ब्राह्मण बालक है कहीं अभिशाप ना दे दे, कैसे छीनेंगे कैसे। तो गोपियां कहने लगी मधुमंगल के साथ, मधुमंगल तो एक काम कर, आज तो कृष्ण आया नहीं हम लोग के पास, किंतु हम लोग के मन में आज इच्छा है रास करने के लिए। तू तो कृष्ण से अभिन्न हो, प्रिय नरमा सखा हुआ हमें पता है, तू एक बार नृत्य कर है और हम भी नृत्य करेंगे। बोले कौन सा नृत्य करते, एक काम कर है तू एक गोपी बन जा और हमारे साथ नृत्य कर। मधुमंगल सोचने लगे कोई भी बात नहीं है, थोड़ा बहुत गोपियों के साथ नृत्य कर ले। तो कभी बोले भाई गोपी बनने के लिए तो ये चाहिए ना, चोला चाहिए और वो क्या बोले लहंगा भी चाहिए। तो बोले एक गोपी बोले हमारे पास तो है नहीं, दूसरी गोपी बोले तू मेरा ले ले। बोले नहीं ऐसे ले लो, मैं अपने पहन लेता हूँ। किंतु मधुमंगल जानते हैं ये लोग पहना के बहाना से नहीं कहीं ना मेरा बांसुरी को ना छीन ले, इसलिए कहने लगे ठीक है तू अपने पहन ले। एक मोटी गोपी थी, उनके जो है क्या बोले लहंगा जो है वो तो मानो कितना था उसके पता नहीं था उसको कैसे पहना है। उसको दो पैर एक भी चला गया और एक जो है कैसे पहने आ करके आगे। तो गोपियां हंसने लगी, तो लहंगा पहना तो जानते नहीं हो नृत्य कैसे करोगे। मधुमंगल देखा तो मेरे से दो पैर जो एक ही तरफ चला गया, वो मोटी गोपी था ना उसके पता ही नहीं था और एक ऐसे सी हुआ। तो मधुमंगल विचार करते करे भाई गोपियां थी बहुत चालाक है। गोपियां कहने लगी
अरे तुझे पहनना नहीं आता, हम पहना देते। मधुमंगल तो भाई बेशर्म हो गया, विचार करने लगा अच्छा ठीक है, भूल गए। गोपियाँ पहनने लगी, पहनाते पहनाते क्या उसके बांसुरी के तो इस तरफ से इधर, एक गोपी से दूसरी गोपी से कहाँ चली गई पता ही नहीं चला। मधुमंगल नृत्य करने लगे, बोले बहुत अच्छा हो गया, हाँ नाचो। मधुमंगल नाचने लगे और एक नृत्य करते करते एक गोपी सरक गई बात। वो मधुमंगल तो गोपी भाव में नृत्य कर रही है, आज मैं गोपी कहाँ सखा है, कहाँ गोपी बनना चाहती है, होता है थोड़ी है भाई। जो सखा जो है तो अपने स्वरूप पे तो होता है, कोई गोपी नृत्य करते हैं, सखा थोड़ी नृत्य कर पाएगी। वो नचने लगे, सब सखी हाथ ताली देने लगे और वो तो बस नृत्य करने लगे और एक देखते देखते सब गोपियां ऐसे ऐसे करके सब सर गए। वो अकेला देखा सारे कोई गोपी है ही नहीं, कोई भी बात नहीं है। मधुमंगल जब आया, आंध्र लाडू भी वह पर रखा, सब गोपी कहते तू लाडू ले ले, बस लाडू खाते हुए आ गया। भूल गए बंसरी कहाँ है। आगे सखाओं के पास आए, कृष्ण के पास मिले, कृष्ण कहने लगे साले मेरा बंसरी कहाँ है? अरे बंसरी हमारे पास है। बोले बंसरी क्या है? लंगा खोला दिखा तो कहाँ गए कहाँ गए? तो कहने लगे कोई सखा कहने लगे, कृष्ण कहने लगे मधुमंगल तू ब्राह्मण है, बहुत डी हाँकते रहते हो, संगवानी विद्या तू बता अभी कहाँ से आए? मधुमंगल तो बिल्कुल चिंता करने लगे, हाँ ये तो बात सच है। मेरा मंत्र तंत्र कोई गोपियों के सामने मेरा मंत्र तंत्र कुछ नहीं चलता रहता नहीं है। जहाँ पौरांग राधिका मंत्र जब करते रहते हैं, ब्रह्मा आदि शिव आदि देवता भी वहीं पर भी वहीं हो जाते हैं, मधुमंगल क्या कर पाते हैं। इसलिए मधुमंगल विचार करने लगे क्या करें। तो कहने लगे एक बात कर, एक बात मैं सुनाता हूँ। कृष्ण कहने तू एक काम कर, बांसुरी तो है ही नहीं। सखा लोग कहने लगे देखो गोपियाँ यहीं पर कहीं नहीं कहीं झोपड़ी में वो सब छुपी हुई है, एक काम कर बंसी उद्धार करने के लिए एक बात बता दो। कृष्ण कहने लगे तू एक काली श्यामली गोपी बन जा। तो कृष्ण की क्या है, कृष्ण के श्यामली गोपी बना दिया, बिल्कुल गोपी जैसे बनी। खैर कहने लगे तू यहाँ पर लूट वोट खाते रहो और गोपियाँ जब इस तरफ आएगी ना उनके पैर पड़ जाना, ये गोपियों मैं बहुत दूर से मैं आई हूँ, मेरा बिहार से मैं आ रही हूँ इधर, मेरा तो यहाँ पर पहली शादी हुई है। मैंने सुना है ये तेरे श्याम सुंदर बहुत देखने सुंदर है, श्याम सुंदर की बहुत महिमा मैंने सुनी, किंतु कोई मेरे श्याम सुंदर दर्शन नहीं। देख तू एक बार श्याम सुंदर को मेरा दिखा दे, नहीं तो मैं यहाँ पर प्राण छोड़ दूंगी। कृष्ण ऐसे करके लूट-फूट खाने लगे। राधा ललिता विशाखा आदि उस श्यामली गोपी के ऐसे देख देख करके बिल्कुल बेहाल रोने लगे। ललिता देवी कहने लगी देख सचमुच है, कैसे सरला गोपी है। बोले तेरा नाम क्या है? मेरा नाम श्यामली सखी का है। कहाँ से आई है? निकट में जावट के पास ही मेरा शादी हुई, अभी शादी हुई, अभी भी ब्याह आई। मैंने सुना तुम्हारे श्याम सुंदर के साथ तुम्हारे बहुत प्यार है, तुम्हारे बिना कोई श्याम सुंदर के दर्शन कर नहीं पाते, इसलिए मैं आई राधे तुम एक बार श्याम सुंदर के दर्शन करा दो। कैसे बांसुरी बजाते हैं, कैसे तिरछी नजर, कैसे उसके जो है भ्रुकुटी, कैसे उसके जो मोर पंखा, कैसे मंद मुस्कान, उनके एक स्वरूप के तुम दर्शन करा दिए। उनके ऐसे बेहाल अवस्था देख करके ललिता देवी के हृदय तो श्याम सुंदर जान बुझ करके सामने सकी है ना, ललिता देवी के चरण पकड़ करके रोने लगे। हे ललिते तेरे बिना तो हमारी वो श्याम सुंदर के दर्शन तो एक बात ललिता देवी के हृदय द्रवीभूत हो गया। कभी ललिता के पैर में पड़ने लगे, कभी विशाखा के, कभी और कोई गोपी के। सब गोपियां विचार करने लगी। राधे कहने लगी राधे तू एक काम कर, तेरे पास तो बंसी है ना, हाँ कैसी कोई भी बात नहीं है, तू एक त्रिभंग होकर के उनको स्वरूप को दिखा दे। तुमको हम लोग कस्तूरी के द्वारा तेरे शरीर को जो कला बना देते हैं, सफेद को कला कर देते हैं। बुरी को क्या बना देते हैं? ब्यूटी पार्लर में जाना नहीं पड़ेगा, हम लोग ये पर ब्यूटी पार्लर खोल देते। बोलो अच्छी बात है। गोपियाँ मानो वहीं पर ब्यूटी पार्लर खोल दी और जो है राधा जी के बिल्कुल जो है कृष्ण जैसे बना दी। इतने देखने सुंदर है, मैं क्या बताऊँ। राधा जी जब कृष्ण बन जाती है उनके स्वरूप को कौन वर्णन करे, इतना सुंदरी जो है और क्या बना। बस राधा जी बंसी लेकर के ऐसे खड़ी हो गई और श्यामली सखी कृष्ण और राधा जी को वो देखते हुए बस
टकटकाते हुए नजरते हुए आने लगे। आते आते हुए बिल्कुल सामने आगे आकर के लपक करके उसको बंसी पकड़ ली, छीन ली। बोले ये बंसी मेरी है, तेरी नहीं है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और इसके बाद जो है राधा ललिता विशाखा आदि सारी सखियां जो है श्याम सुंदर के रत्न सिंहासन पर बैठाया और जय जय राधा कृष्ण संक्षेप में। अभी हम लोग की भूख भी लग गई, प्रसाद भी आगे की भैया इधर ही है। हाँ तब तो अच्छा ही है। हाँ पिछले बार मैंने कहा था कि अच्छा ठाकुर जी, तो ठाकुर जी सारे कथा को सुनाया। आज रात में जो है ये किशोरी जो है लाली जो है आज बंसी बजाई, हमें तो बिल्कुल परेशानी कर दिया। इसमें प्यार में इतने दर्द हो रहे हैं, सोरी पार तो हमारे प्यार की दवा। लोकनाथ दास गोस्वामी ठाकुर जी की सुलाया और उनके अच्छी तरह से धीरे 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 नशा दबा, गला नहीं दबाया, पैर दबाया, बहुत प्रेम से बैठा। ठाकुर जी सो गए। लोकनाथ दास गोस्वामी देखा ठाकुर जी दास सो गए है, बिल्कुल मानो ठाकुर जी यार खर्राटा भी ले रहा। ठाकुर जी खर्राटा लेते हैं कि नहीं लेते? लेते हैं। तब भी हम कहते हैं लेते भी है, उसमें क्या होता है, नॉर्मल सब कुछ कर सकते हैं। चलो ठाकुर जी आज सो गए। लोकनाथ गोस्वामी थोड़ा सोने करने के मेरा थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। इतने समय 10 मिनट के बाद फिर ठाकुर जी आकर के उनके ऐसे कान के नीचे ऐसे ऐसे करने लगे। लोकनाथ गोस्वामी ऐसे आँख खोले, देखा तो ठाकुर जी फिर मंद मुस्कान करते हुए खड़े हुए हैं। फिर ठाकुर जी क्या बात हुई यार? कहने लगे देखो अभी बहुत गर्मी लग रही है, लू चल रही है, मैं सो नहीं पाता, पैर के दर्द तो ठीक हो गया, तूने बहुत आराम से मेरे पैर को तो दबाया, गला तो दबाया नहीं, पैर तो दबाया। मैं तो सो गया, किंतु आज गर्मी लग रही है, पहले क्या करूँ ना, मैं थोड़ा हवा कर। लोकनाथ दास गोस्वामी उसी रात्रि में पेड़ के पत्ता को लेकर के फिर ठाकुर जी के जो है हवा करने लगे, ऐसे हवा करने लगे। जब हवा करने लगे ठाकुर जी सो गए, बहुत आराम से ठाकुर जी सोए। लोकनाथ जी सब विचार करने लगे ठाकुर जी तो सो गए, मैं भी थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। ठाकुर लोकनाथ जी विश्राम करने लगे। फिर 10 मिनट के बाद ठाकुर जी आ गए। फिर वही ठाकुर जी है इधर पर कान के नीचे ऐसे कर, भाई कोई सो जाए ना यहीं से करो ना, वो जल्दी जग जाता है। यहीं पर बहुत हम लोग सेंसिटिव होता है, सब प्रकार की जो है नाक यहीं से शुरू हो जाता है। गलती से किसी को यदि यहीं पर जोर से मार दो ना तो मर जाएगा भाई, यही कान पट्टी कहा जाता है। हाँ यहीं से कहीं किसी के ऐसे जोर से मार दो ना तो मर जाएगा, क्योंकि यहीं पर सारी नाक जो है वो होता है, ब्रेन फट जाएगा उसका। चलो तो ठाकुर जी यहाँ पर आके धीरे 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 ऐसे करने लगे। लोकनाथ आँख खोला, देखा था ठाकुर जी मंद मुस्कान करते हुए खड़े हुए। बोले क्या बात हुई? कहने लगे लोकनाथ मुझे भूख लग रही है बहुत। रात 1-1:30 बज गया, मुझे भूख लग रही है। जानते हैं तो कब सुबह होगा 4 बजे मंगला के बाद मछली भूख दोगे मुझे, किंतु अभी तो 1:30 बज रहे, मुझे भूख लग रहा है। तो अब मैंने कहा था ना रास करके आए ना, नित्य करते करते थोड़ा थकन आ गया, भूख लग रही। अच्छा तो क्या करूं, मेरे लिए पूरी बना और आलू टमाटर की सब्जी बनाना है। अच्छा अच्छा चकाचक चटपटा करके फटपटा करके घी दे करके बनाना अच्छी तरह से है, और थोड़ा भी मिर्च भी डाल देना। ब्रज के ठाकुर खाते हैं ना भाई, हरी मिर्च हो और जो पीला मिर्च खाते हैं। ठाकुर जी के ब्रज के ठाकुर मिर्च खाते खाते इतना हो गया ना, बिल्कुल ब्रज छोड़ के भागे बंगाल चले गए।
चावल खाने के लिए बग गया, बोले यहाँ पर तो केवल पूरी और सब्जी खिलाते बग गया वो। वहीं पर जाकर के पास सोची देवी के पास रहने लगे और सोच है वहीं पर मुड़मुड़ा खिलाने लगे और वो साग खिलाने लगे, बात हो गया है। नवद्वीप के संदेश होता है ना, बहुत मीठा होता है। वहीं पर मिर्ची मिर्ची कम लोग खाते हैं ये तो ज़्यादा नहीं खाते। चलो ठाकुर जी कहने लगे मेरे लिए अच्छी तरह से जो है चकाचक बना देना। चकाचक जानते हो ना, बढ़िया करके चकाचक और बिल्कुल जो है देसी घी टपक टपक पड़े और मिर्च भी डाल देना है बस। और टमाटर बिल्कुल या लाल लाल टमाटर जो हो आराम से। लोकनाथ दास गोस्वामी ठीक उसी समय है पूरी बनाया और बिल्कुल जो है ऐसे ऐसे फुटा हुआ पूरी है, कच 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 मचमच कच 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 मचमच करने वाली होता है। कच मचमच होता है, पूरी खाओ भाई, गरम गरम होते हैं ना, कच 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 लगता है ना खाने में। और टमाटर की सब्जी होता है ना, और बस आराम से ठाकुर जी खाने लगे। ठाकुर जी खा करके बड़े लोकनाथ प्रसन्न हो गया, सोने के जा रही। एक बात सुनो, ठाकुर जी 2 पैदल जाकर के बार कहीं घूम करके आ गया। बोले लोकनाथ एक काम कर, अभी तो 2-2:30 बज गया, आज मंगला जो 4 बजे मत करना। हर रोज तू मंगला 4 बजे करते हो, किंतु आज मंगला किस बजे करना? 10 बजे करना। मैं प्रेम से चैन से सोता हूँ। बोले लोकनाथ बोले यार ठीक है। ठाकुर जी 10 बजे तक सोते रहे और लोकनाथ की भजन करते रहे। बोले बोले ब्रज के ठाकुर ऐसे प्रेमिक होते हैं। प्रेमिक जन जो होते हैं ना उनके प्रेम होता है? कोई कई कहते हैं हम गुरुदेव पे चले गए, हमें अभाव में पड़ गया। अरे अभाव नहीं, अभाव स्वभाव और भाव और विभाव। कौन समय पड़े हुए तो बता। अभाव का इसका को है, स्वभाव तो छोड़ना नहीं चाहते हो, अभाव पड़ जाता है। हम जब हम लोग स्वभाव को छोड़ देना तब हमारे सारे अभाव दूर हो जाएगा। आज समझ में, अभाव का हम लोग स्वभाव को छोड़ दे तो हमारे अभाव दूर हो जाए, और फिर अभाव दूर हो जाए अपने आप भाव आ जाएगा। भाव आ जाए तो अपने आप क्या आ जाएगा? विभाव आ जाएगा। ऐसे ना, मैंने कभी कभी इस कथा को थोड़ा रस्ते बोलते हूँ, अभाव विभाव स्वभाव कुभाव भाव विभाव, कितने भाव लिखा है इसमें? एक थोड़ी है भाई। अभाव का है तुम्हारा है, कुभाव के छोड़ दो, स्वभाव के छोड़ दो, कुभाव स्वभाव के छोड़ दो, भाव आ जाएगा। भाव आ जाए तो विभाव आ जाएगा अपने आप। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। अभाव का को नहीं है। जितना तुम्हारी श्रद्धा बढ़ती जाएगी ना, कथा में आनंद होगा, उस आनंद में तुम डूब जाओगे, तुम्हारे सब तुम भूल जाओगे। बोलो वृंदावन बिहारी जय जय श्री राम। सब लाइन होकर के बैठ जाओ प्रसाद के है। सब लाइन होकर के बैठ, एवरीबॉडी मेक द लाइन एंड टेक प्रसाद। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल।